3 महीने में अनफॉर्चुनेटली कोई बिजनेस सेटअप कर ही नहीं सकता। मुझे चार हाँ। साल हो गए ना, अभी भी मुझे लगता है कि ये चलेगा क्या। इट इज अ गेम ऑफ अप एंड डाउन, बट आई वुड 100% अर्ज अ कॉलेज स्टूडेंट कि एक बार ही एक मॉडल को मौका देके देखो, या प्रॉफिट देखो तो अबाउट 5 लाख मंथ का हो जाता है। दैट मीन्स 5,000 पीपल हैव सर्च फॉर द सॉफ्टवेयर, मैं सबसे टॉप पे आया हूँ। where that one video that I took in my 1 hour of work has हम्म। got me over $500 in commissions. So, hello everyone, and welcome back to the another episode of the Teen Show. And today we have Shivam Gupta with us. Shivam, can you give a brief introduction about yourself? Yeah, sure. First of all, thank you so much for having me on the podcast. I really appreciate that. As for the introduction, currently I am 23 years old and I run two marketing agencies of my own. I started on my journey when I was about 18 years old, so still in school, just, giving my 12th board exams. That's when my journey with social media started. It wasn't always about social media marketing or management. It was more about, growing on Instagram and theme pages, things like that. So it started off from there and slowly I got into the space of social media marketing, learned a few things here and there. And yeah, now I can say that I'm doing decently in the space. And yeah, I just launched my YouTube channel as well, where I'm documenting my whole journey, same on Instagram. And that's actually where we met as well. So it's great to see that, social media platforms, not only for businesses, but for personal brands work as well. So just been working on that. And yeah, I'm really happy to introduce myself to everybody and see if I can bring some value to the podcast as well. Yeah. So, Shivam, how was your family background? Like, you came from a rich family or kind of middle class family? I would say I come from a business family itself. So my Okay. dad is in the tile industry, so tiles and sanitary ware. That's what he is. Okay. He's basically a middleman. So we're not manufacturers or anything, but it's a middleman Mhm. thing. So I grew up in a decent home. It's not like I come from some of a poor background or something. But yeah, Mhm. he was the person who supported me in this journey. Being a businessman himself, Mhm. I guess he saw like the thing that what can grow a business. And Mhm. it's a family business, but like other family businesses, I was never given the choice to join it because he always said that you need to understand what it is like to start something of your own. Mhm. And he didn't never believed in like passing something on, versus he Mhm. believed in making the person build something, because that's how you build character and learn to fend for yourself versus just being handed down something that is in the family. Yeah, so this question was like to build a background thing. So like, did he help you or something? या कुछ restrictions थी घर के साइड से कि पहले पढ़ाई करो and things. नहीं, ऐसा रिस्ट्रिक्शंस तो कभी नहीं थी, बट या Hmm. आई started off my journey. I started off watching YouTubers, and Hmm. there was a trend on YouTube saying college dropout, and Hmm. that's how you become rich. So Hmm. Yeah. I won't lie कि मेरे को लगा था कभी कि एक बार ड्रॉप आउट करके देखते हैं, but my mom was very strict about this, that she never forced me into anything, but she always made me understand कि having a backup plan is not bad. Yeah. You can always do something alongside college. In 3 साल का college, उसके बाद you can do whatever you want. And I actually landed my first client for social media marketing the day I was getting I was going to give my admission papers in to sign up for college. And Yeah. my dad gave me a choice that you can either take a 1 year drop and see where business takes you, but you will Hmm. still have to do it via like learning, that क्या बोलते हैं Distance उसे, learning. open school, yeah, Yeah. distance Yeah. learning, या फिर आप कॉलेज जा सकते हैं. One of my really close friends actually figured out the college that I went to, Hmm. and that college was a business college that just wanted you for 4 hours in college, and rest of the time they wanted you to work on your business or family business or whatever. So Okay. I ended up joining there. So I had a good Hmm. enough that I was going to college for 4 hours, and rest of the time I had to build up my agency. And this Hmm. way, I recommend going to college as a thing because like I found a really good circle of friends, Hmm. and I feel online journey can be really really lonely because based out in India, I was working with clients abroad, Hmm. so I Hmm. never had like people to talk to, people to meet. So college made me have that social aspect to life rather than just being in my room and working on something that Hmm. is totally based on Zoom and online. Hmm. Okay. So, tell me a story about agency things like Iman Getzi and इन लोग को देख के you got the plan कि चलो ये start करते हैं. Yeah, there was something which another thing which got you into this. So मेरे को एक्चुअली Before this, एक बार audience को बताओ what is an agency. लोगों को अभी तक clear idea तक नहीं लगा है what does a social media marketing agency does. So give that idea yeah, and then आप वो question का answer दो. yeah, sure. So, Yeah. social media marketing agency is not related to just social media marketing. It can be related to managing somebody's Instagram page for them, Hmm. editing the YouTube videos, editing a reel for them. जो जो आप reels देखते हो अपने online, वो कोई ना कोई
एजेंसी कर रहा है क्रिएटर के लिए, इट्स अ पर्सन बिहाइंड एन एजेंसी, कैन बी अ वन पर्सन एजेंसी एज वेल एज एन एजेंसी विद अ टीम। एंड आप बेसिकली एक और बिजनेस ओनर या क्रिएटर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो इन सच अ सेंस कि उनको आप वैल्यू ब्रिंग कर रहे हो। इट इज व्हाट आई कॉल अ विन विन सिचुएशन। Yeah. एन एजेंसी इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन बिकॉज यू आर अर्निंग मनी ऑन द बैक एंड, बिकॉज आप उनकी हेल्प कर रहे हो और आप उनके लिए कुछ आउटसोर्स करवा रहे हो जो उनके टाइम का वर्थ नहीं है। यू आर नॉट Hmm. टेकिंग समथिंग फ्रॉम देम। अगर एक D2C ब्रांड देखे तो कभी कभी लगता है कि बहुत लोगों को यार मैं प्रोडक्ट बेचा खत्म हो गया। While social media marketing helps you build that relationship around the business and you become a Hmm. complementary service to the business rather than वो आपको एक एक्सपेंस की तरह नहीं एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। एंड दैट इज Hmm. व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज वन ऑफ द टॉप बिजनेसेस ट्रेंडिंग जो आप देखते हो Hmm. आजकल। Hmm. And how जहां did you तक get बात into the रही, space? या जहां तक आई गॉट इनटू द स्पेस, आई एक्चुअली नेवर न्यू अबाउट व्हाट सोशल मीडिया मार्केटिंग इज। Hmm. मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था बस बाय ग्रोइंग एन इंस्टाग्राम थीम पेज, बिकॉज उस टाइम पे थीम पेजेस का बहुत ट्रेंड चलता था कि Yeah. पिक्चर्स गो वायरल। उस टाइम रील्स वगैरह कुछ नहीं हाँ थी व्हेन आई हाँ. स्टार्टेड। And I actually started a motivational quotes niche में page because Hmm. when you're 17 18 you always love to see हाँ motivational quotes हाँ. and inspire वगैरह। तो मैं देखता था इतने सारे लोग 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स पे and लोग शाउट आउट्स वगैरह बेच रहे हैं ये वन। आई जस्ट थॉट इट विल बी अ गुड नाइस लिटिल बिजनेस मॉडल बिकॉज Hmm. इससे पहले मैं यूट्यूब चैनल्स वगैरह बहुत स्टार्ट किए थे, कम्युनिटी चैनल्स जैसे होते थे, स्टोरी Hmm. चैनल्स जो लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी का बैकग्राउंड प्ले करो तुम स्टोरी सुना रहे हो। हाँ ये हाँ. सब मैंने बहुत ट्राई किया था। आई पहले मिस्टर बीस्ट भी यही करते थे। मिस्टर बीस्ट, आई फॉलोड मिस्टर बीस्ट व्हेन ही वाज एट 10,000 फॉलोअर्स एंड Oh. उस टाइम पे ही यूज्ड टू डू कॉल ऑफ ड्यूटी स्टोरी टाइम वीडियोस। एंड Okay. उसके बाद ही गॉट इनटू दिस 24 आवर चैलेंजेस, उसके बाद ही हाँ. बिकम दिस बिग वो। Hmm. बट एट दैट टाइम उसका मिस्टर बीस्ट का 6,000 या कुछ चैनल था। मिस्टर बीस्ट 6,000 था उसका चैनल। Okay. सो अगर आप उसका कभी आउटरो भी सुनोगे इट सेज मिस्टर बी 6,000 बिकॉज Hmm. हिज ओरिजिनल चैनल्स नहीं वाज दैट। तो Okay. मेरे को यूट्यूब पे इंटरेस्ट था, इंस्टाग्राम पे ग्रोथ नंबर्स दिख रहे थे। आई Hmm. स्टार्टेड ऑफ विद इंस्टाग्राम एंड आई एक्चुअली ग्रू दैट पेज टू ओवर 120,000 फॉलोअर्स और सो। एंड ये बात है बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे आई एक्चुअली गॉट एन ऑफर टू सेल द इंस्टाग्राम पेज। Hmm. एंड उस टाइम पे आई वाज नाइव एंड आई डिडंट नो कि लाइक इतने ज्यादा स्कैम वगैरह होते हैं। एंड दे ऑफर्ड मी 3 लाख रुपीज फॉर द चैनल Three एंड lakh मैं rupees for काफी the लाइक page. फॉर द पेज या। एंड Wow. आई वाज रियली एक्साइटेड कि अरे भाई मतलब 12th स्टैंडर्ड 18 का नहीं हुआ एंड आई एम मेकिंग 3 लाख जो एक नॉर्मल बंदे की सैलरी Yeah. होएगी साल की। Yeah. Yeah. एंड जल्दबाजी में आई मेड द रॉन्ग डिसीजंस एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई गॉट स्कैम। तो मेरा पेज भी चला गया, मुझे पैसे भी नहीं मिले। Oh तो shit. देन आई स्टार्ट सर्चिंग ऑन कि इंस्टाग्राम पे कैसे और क्या चीजें कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस अ कोर्स फ्रॉम ब्रैड राइली। तो उस टाइम पे ईमान वाज आल्सो वेरी Hmm. स्मॉल एट दैट टाइम, ही आल्सो आई थिंक डिडंट हैव अ कोर्स। सो मैंने ब्रैड राइली का कोर्स था आई थिंक $300 या कुछ का। एंड आई आस्क्ड Hmm. माय डैड फॉर द मनी कि लाइक अगर मेरे को 3 लाख रुपीज मिलता है आई वुड हैव बॉट दिस कोर्स। सो he gave that to me as startup capital कि this is the only thing that I'm going to give to you, rest you have to build from here। And that's Okay. how I got into the agency model कि चलो Hmm. ये ट्राई करके देखते हैं कि अगर खुद का पेज नहीं है तो आई कैन पुट Hmm. द स्कीम्स दैट आई ग्रो अदर पेजेस विद एंड वो एक बिजनेस को हेल्प करने के लिए कर सकता हूँ Okay. मैं। So starting से वन लाइन लैब्स एंड DFI रील्स पे ही था या और कुछ स्टार्ट किया था अभी उसके पहले? नहीं, उससे पहले आई हैड समथिंग सोशल करके एक था और उससे पहले फाउंडर मीडिया था। सो आई अच्छा. हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ एजेंसीज बिकॉज लोगों को क्या लगता है जो फर्स्ट आइडिया वही बेस्ट आइडिया है, बट दैट इज नॉट Hmm. द केस। यू हैव टू इवॉल्व Hmm. विद द मार्केट ऑफ सोशल मीडिया। तो Hmm. जब मैंने स्टार्ट किया था आई वाज जस्ट डूइंग लाइक ग्राफिक्स बना दी और हैशटैग्स लिख दी और शेड्यूलिंग कर दी। Hmm. एंड उस टाइम पे दिस वाज पॉपुलर बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल वांटेड एंड फेसबुक Yeah. एड्स वगैरह आई स्टिल डोंट नो हाउ टू रन। एंड उस टाइम पे हायरिंग का कॉन्सेप्ट वाज वेरी फॉरेन की, लोग कैसे हायर हाँ करते हैं किसी को, क्या हाँ. करते हैं। तो लगता था खुद ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैनवा की बेसिक टेम्पलेट सीख ली कैसे करते हैं, क्योंकि फोटोशॉप भी नहीं आता था Hmm. एंड कैनवा के थ्रू करते थे। तो ब्रैड राइली का मैं फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट था। तो Hmm. ही आस्क्ड मी कि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स और आपका डिजाइन वर्क अच्छा है तो डू यू वांट टू आउटसोर्स दीज टू यू। मतलब मैं क्लाइंट को Hmm. क्लोज करूंगा, आपको मैं आउटसोर्स कर दूंगा और आप डिलीवरी Yeah, करना। he'll be charging तो आई some वाज लाइक commission. ओके। तो इससे मुझे या हाँ. मतलब ही वाज टेकिंग द मेजर प्रॉफिट। तो अगर उन्होंने $5 का क्लाइंट क्लोज किया, ही यूज्ड टू पे मी $150 टू डू Okay. एवरीथिंग। हाँ. एंड वो बीच में यूज्ड टू मेक द प्रॉफिट। तो Hmm. आई यूज्ड टू हेट सेल्स कॉल्स। तो Hmm. मैं बहुत खुश था कि जितने वो क्लाइंट क्लोज करेगा उतने क्लाइंट मेरे पास आएंगे। हाँ. तो समथिंग देन मैंने समथिंग सोशल को स्टार्ट किया एज एन आउटसोर्सिंग एजेंसी, जिसमें मैं फॉरेन के क्लाइंट्स फॉरेन एजेंसीज को रीच आउट करता था कि Hmm. मैं सर्विस डिलीवरी कर दूंगा, आप बस क्लाइंट क्लोज करो। बिकॉज फॉरेन एजेंसीज का यही सबसे बड़ा मॉडल होता था कि इनको सेल करना आता था, इनको आउटरीच करना आता था, बट इनको सर्विस डिलीवरी नहीं आती थी। बिकॉज Hmm. और हमें उस टाइम मेरा ये परसेप्शन था कि मैं एज ए इंडियन सेल नहीं कर पाऊंगा किसी को US या UK में, जो कि
अब मेरा परसेप्शन चला गया है बिकॉज आई हैव सोल्ड सो मेनी, बट उस टाइम पे दिमाग में रहता था कि एक इंडियन के बाद कोई क्यों सुनेगा जब उनको एक यूके या यूएस का बंदा मिल सकता है. तो हाँ. I started outsourcing this, and then हम्म. later on, One Line Labs came to be जब ये एजेंसी चल रही थी. ओके. पहला क्लाइंट मिलने को कितना टाइम लगा एंड लाइक कितने लोगों को आउटरीच करा, कोल्ड डीएम्स एंड थिंग्स? तो पहला क्लाइंट वाज एक्चुअली मेरी कॉलोनी में. फनीली ओके. इनफ देयर वाज दिस लेडी जो एग्जीबिशंस करती थी, ओके. एंड शी वाज लुकिंग फॉर सोशल मीडिया पर्सन. एंड इंडियन मॉम्स बीइंग इंडियन मॉम, उन्होंने पूरा ढिंडोरा पीट दिया था कि वो कुछ सोशल मीडिया में करे, कुछ सोशल मीडिया में करे. तो शी रीच्ड आउट टू मी एंड शी हम्म. पेड मी 5,000 rupees फॉर 30 posts a month, पोस्टिंग, शेड्यूलिंग, डूइंग लाइव स्टोरी, सब कुछ. अच्छा. एंड 5,000 rupees तो बहुत कम होता है सब चीजों के लिए, बट वो हाँ. फर्स्ट सा एक्साइटमेंट वगैरह में सब कर लिया था. सो हम्म. दैट क्लाइंट केम इन बाउंड. मान लो अब रेफर की मतलब एक हम्म. नेबरहुड में पता लग गया ये बंदा कुछ हाँ. कर रहा है. बट द अदर वन आई एक्चुअली क्लोज फ्रॉम अपवर्क. एंड अपवर्क पे आई थिंक इट टुक मी अबाउट 1.5 months ऑफ आउटेज, बिकॉज जो ब्रैड राइली का कोर्स था दैट ओनली टॉट अपवर्क. तो हम्म. मेरे को उस टाइम कोल्ड ईमेल के बारे में कुछ नहीं पता था. आई ओनली न्यू हाउ टू डू अपवर्क. तो हम्म. अपवर्क पे मुझे 1.5 months लगा था ऑफ सेंडिंग आउट प्रपोजल्स एवरी डे. और उस टाइम पे फ्री कनेक्ट देता था अपवर्क. अब तो पेड हो गया सब कुछ. हाँ. पहले वो फ्री कनेक्ट देता था कि $10 आप महीने का दो, एंड आपको बहुत सारे कनेक्ट्स मिल जाते थे. उस टाइम बिडिंग सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं था. तो इट वाज जस्ट टू बिड्स पर प्रपोजल, एंड आपका प्रपोजल चला गया. तो ओ. इट टुक मी अबाउट 1.5 months और सो टू लैंड माई फर्स्ट क्लाइंट, जो एक बाथरूम रीमॉडलिंग नीश में था. ओके. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद देम. ओके. सो अपवर्क फाइवर की बात आई है तो अभी यार मेनली जो एजेंसी बोलते हैं ना, ऑनलाइन बिजनेस एजेंसी कोचेस लाइक बहुत सारे आपको पता है, राइट? जो कोर्स राइट. निकाल रहे हैं थिंग्स एंड थिंग्स. तो वहां पे आप बोला जाता है कि अपवर्क एंड फाइवर डेड हो चुका है एंड फ्रीलांसर्स हम्म. को भी सजेस्ट किया जाता है कि वहां पे मत जाओ. तो उस पे आपका क्या हम्म. टेक है? लाइक इज इट रियली डेड या तुम्हें यूज करना नहीं आ रहा है इसलिए तुम्हें डेड लग रहा आई वुड से यूज करना भी नहीं आ रहा है इसलिए डेड लग रहा है. आई वुड है? से बिकॉज Upwork is a very self-understood platform, एंड ओके. कोर्सेज बिकेंगे नहीं अगर वो बोले Upwork चलता है. बिकॉज Upwork पे आपका काम बोलता है. आपको कोई बहुत ज्यादा मेजर स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है. आपको लिटरली जाना है, सर्च बार में सर्च करना अपना जॉब नीश और एक प्रपोजल लेटर लिखनी है. दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ Upwork वर्सेस हाँ. कोल्ड ईमेल, कोल्ड डीएम. इन सब में बहुत चीजें चाहिए होते हैं जो एक पर्सन आपको सिखा सकता है. हाँ. मेरा खुद का कोर्स जो है, मैंने उसमें Upwork को मेंशन किया है, एज अ या. फुल मॉड्यूल मेंशन किया है, बिकॉज आई रियली डू बिलीव वहां पे वार्म लीड्स मिलती है. वार्म लीड्स आर द इजीएस्ट लीड्स टू क्लोज, बिकॉज उनको चाहिए जो सर्विस आप प्रोवाइड करो. आप एक कोल्ड आउटरीच नहीं करा, आप उनको बस ये बोल रहे हो कि 100 लोगों ने अप्लाई किया जॉब के लिए, मुझे आपको क्यों चूज करना. इफ यू लुक एट इट लाइक दैट वे, देन वो इजीएस्ट सेल है आपका अपवर्क. फाइवर पे मेरा पर्सनलाइज फर्स्ट लाइन का गिग है, विच हैज बीन लाइव फॉर ओवर 1 year एट दिस टाइम. एंड आई थिंक मेरे को विदाउट डूइंग एनीथिंग हफ्ते में एटलीस्ट 2 लोग आउटरीच कर देते हैं अप फाइवर से कि मेरे को पर्सनलाइज फर्स्ट लाइन चाहिए, आप मेरा ऑर्डर ले सकते. एंड हाफ लोगों को मैं ऑफ बोर्ड ले जाता हूँ फाइबर पे, बिकॉज वो 20% लेते हैं. एंड जिन लोगों को नहीं जाना होता वो फाइबर पे रह जाते हैं. तो इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग योर नीश ऑन फाइवर एंड अपवर्क, एंड ऑल्सो हैविंग गुड कवर इमेज, हैविंग अ गुड ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल ऑन देयर एज वेल, कि अगर कोई आपके प्रोफाइल पे लैंड करे तो इट शुड लुक लाइक यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड यू शुड हैव द वर्क टू बैक इट अप. एग्जैक्टली. एंड अभी नीश की बात आई, राइट? सो व्हाट इज द परफेक्ट नीश? एंड नीश यार बहुत सारी हो जाती है. आप शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट में चले गए, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में चले गए, तो आधे लोग तो वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि हाउ टू सिलेक्ट योर नीश. लाइक व्हाइल आई वाज या. स्टार्टिंग माय एजेंसी आज से 3 महीने पहले, अभी 3 महीने में मुझे स्टार्ट करके, से वन आई वाज कंफ्यूज कि यार नीश फाइंड आउट कैसे करें. ठीक है. एंड देन नहीं. आई वाज अ ठीक. फ्रीलांस वीडियो एडिटर, सो आई वेंट इनटू कंटेंट क्रिएशन एंड स्टफ. सो या. उस पे क्या सजेशन है? लाइक परफेक्ट नीश फाइंड आउट कैसे करते I would say there's no perfect niche. मतलब हैं? niche is a very overrated word because हम्म. it's become कि like अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो एक बंदा सिर्फ रियल एस्टेट की बात करेगा, वो कहेगा रियल हाँ. एस्टेट ही niche है जो बचा है, बिकॉज दे हाँ. वांट टू सेल समथिंग. Online industry has become everything about selling and only selling. हम्म. All they want to do is sell their $497 course, $997 course. It's not या. about actually understanding the concept of niche. आप niche down क्यों कर रहे हो? आप हम्म. niche down इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको दिखानी है कि ये मेरी एक्सपर्टीज है, मैं इसी में डील करता हूँ. आज के टाइम पे अगर हम्म. डीएलएफ बिल्डिंग्स के अलावा, डीएलएफ बिल्डर्स बिल्डिंग्स के हम्म. अलावा राजमा बनाने लग गए, तो यू डाउट देयर, या. यू डाउट या. व्हाट दे आर डूइंग. आप उनके पास नहीं जाओगे एक बिल्डिंग के या. लिए, बट और. when you know DLF builders are DLF builders because they build buildings, you will हम्म. always go. So हम्म. niche down is only for कि आपकी एक्सपर्टीज आप क्या रखना चाहते हो. अभी I हम्म. got a student who asked me कि
मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लाइक द सेम क्वेश्चन कि मेरे को नीश समझ नहीं आ रही। तो आई हम्म आस्क्ड देम कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो ही सेड हम्म आई लव कार्स। सो आई सेड गो इनटू ऑटो डिटेलिंग, बिकॉज आप अपने इंटरेस्ट से अपना नीश को अगर अलाइन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम्म आप एक सेल्स कॉल पे जाओगे यू विल बी इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट द सेम थिंग्स, यू कैन टॉक अबाउट कार्स टू द पर्सन, बिकॉज क्या हम्म है, ऑल ऑनलाइन पीपल हैव मेड इट कि सामने वाले सेल्स नंबर है, उसको बस बेचना है, या बट नॉट रियलाइजिंग सामने वाले भी बंदा है। अगर आप उससे बात करोगे, आप उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट करोगे वर्सेस एज अ नंबर, यू विल ऑलवेज सक्सीड मच मोर देन एनी अदर पर्सन हु इज रीडिंग ऑफ अ स्क्रिप्ट, हम्म बिकॉज स्क्रिप्टेड सेल्स कॉल कभी नहीं काम करते अकॉर्डिंग टू मी। आई हम्म ऑलवेज जोक विद माई क्लाइंट जो कॉल पे आता है, ऑलवेज टॉक अबाउट, लेकिन अच्छा आप यूएस में हो तो मेरी बहन भी यूएस गई थी, मैं अभी यूएस आया था, मुझे डिज्नीलैंड आना है, वो जस्ट टू मेक देम फील मोर कंफर्टेबल बिफोर the whole हम्म sales cycle starts. And that's why you should choose something you're interested in, because social media marketing is not an easy business model, but it's not a tough one either. It's just that हम्म थोड़ा टाइम लगता है आपको अपना आउटरीच स्टार्ट करने में, आपको अपना मैसेजिंग लिखने में, सब कुछ। तो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन द नीश यू आर डीलिंग विद, आपको मजा आएगा वो चीज करने में। बट अगर आप रियल एस्टेट के पीछे भागोगे कि अरे रियल एस्टेट XYZ ने बोला था चलेगा, हाँ तो फिर हाँ आपको मजा ही नहीं आएगा, बिकॉज आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में। तो आई हम्म ऑलवेज से अलाइन योर नीश विद योर इंटरेस्ट, एंड दैट्स हाउ यू विल मेक श्योर कि वो पहले 3 महीने जो सबसे टफ होते हैं, यू सेड इट्स बीन 3 मंथ्स, आई एम प्रीटी श्योर यू वुड से दीज 3 मंथ्स वर द टफेस्ट, की या सुबह उठ के देखना कि कोई कोल्ड का वापस नहीं आया, बट फिर से वही हम्म आउटेज करना वापस, लाइक हाँ बट हाँ क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, आप देख रहे हो अरे इसने ऐसे एडिटिंग की है, इसमें तो ये मैं कर सकता था, इसके लिए चेंज, चलो मैं इसको हाँ मैसेज डाल देता हूँ। हाँ दैट क्रिएटिविटी वॉज लेटिंग यू गो टू दीज 3 मंथ्स, वर्सेज अगर आप हम्म एडिटर नहीं होते, आपको एडिटिंग में कोई शौक नहीं होता, यूर हम्म सेड यार क्या बकवास है, मेरे को 40 करनी करनी पड़ेगी वरना तो नंबर नहीं आएगा। So हाँ that's the difference between the niche creation that हम्म I personally felt always and I did always. सर अभी ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं, मैंने अभी यहाँ पे नाम तो नहीं ले सकता बट आपको पता है, जो एसएमएम Yeah. स्पेस के अंदर है और कोर्सेज निकाल रहे हैं, ठीक है, Mm-hmm. एंड दे क्लेम टू बी द बेस्ट। अब वो है या नहीं वो Mm. तो मेरे को यहाँ पे मैं बता नहीं सकता कुछ भी चीजें, ठीक है। तो Yeah. वहां पे कैसा है कि वो प्राइसेस कर रहे हैं 15,000, 20,000, 30,000 रुपए। तो लाइक Mm. जब आपका कोर्स आया ना, मैंने देखा, मैं से क्यों खोल के देखूं, वर्थ नहीं है वो 20,000 रुपए लाऊं कहाँ से। बट Mm. स्टिल आई वाज Mm. लाइक, फिर स्टोरी आई कि 2,500 Mm. मैंने खोला, एंड देन इट वाज लाइक कि हाँ कुछ तो सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स के लिए 2,000। देन आई Mm. इमीडिएटली टेक्स्टेड यू द नाइट कि ब्रो आई एम प्लानिंग टू Yeah. बाय इट, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग Yeah. मैंने आई पेड एंड आई गॉट द कोर्स। Yeah. Yeah. सो वो इतने कम में सेल करने का मोटिव क्या था पीछे? Why, like you said, I never claim myself to be the best, and I'm हम्म pretty sure I have so many things to learn. So हम्म सबसे पहले जिस बंदे ने अपने आपको बेस्ट क्लेम कर दिया, आई फील उसकी लर्निंग बंद हो जाती है वहां पे। एंड आई फील कि मेरी लर्निंग अभी चल रही है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू लर्न लिंक्डइन नाउ। मेरा ओके। लिंक्डइन इज माय वीकेस्ट पॉइंट राइट नाउ, एंड आपने देखा होगा कोर्स पे भी लिंक्डइन के बारे में नहीं बात की, मैंने क्योंकि लिंक्डइन चेक किया आई कल रिसर्च करने के लिए, बट आपका लिंक्डइन मिला नहीं मुझे। हाँ, बिकॉज मैं बहुत इनएक्टिव हूँ, तो आई हाँ आई एम नॉट प्लानिंग टू गेट मोर एक्टिव। जब क्लाइंट्स क्लोज करने लगूंगा एक मॉड्यूल ऐड कर देंगे लिंक्डइन पे। आई चार्ज 2,499, अभी भी 2,500 का ये कोर्स हाँ अभी बढ़ाने की सोच रहा हूँ, बिकॉज वीव गॉट 50+ स्टूडेंट्स या बाय नाउ। तो या आई फील कि नाउ इज द टाइम कि थोड़ा यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ बार रेस्ड की धीरे धीरे, ताकि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका भी एक बार हो, लेकिन एवरीबडी कैन कनेक्ट विद ईच अदर। या बट मेरा ये कभी एम नहीं है कि 5,000 रुपए से ज्यादा ये जाए, बिकॉज हम्म लाइक आई सेड कि इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट माई मोटिवेशन टू अर्न मनी फ्रॉम दिस, ठीक है जो हम्म आ रहा है इट्स एन एडेड बेनिफिट। मैं हम्म यूट्यूब पे 100+ वीडियोस डाल चुका हूँ फॉर फ्री विदाउट अर्निंग एनीथिंग या ऑफ यूट्यूब। सो द कोर्स वाज जस्ट अ कंसोलिडेटेड वे ऑफ प्रोवाइडिंग एंड हम्म गेटिंग पीपल टू कमिटेड 2,500 रुपीज, बस कमिटमेंट है। एंड यू हम्म वोंट बिलीव आई गेट सो मेनी डीएम सेइंग कि आप मुझे फ्री में दे दो, मैं आपको पे हम्म बाद में कर दूंगा। या फिर मैंने कहा बट अगर आपके पास 0 रुपीज है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट ही नहीं कर सकते। यू हाँ नीड एटलीस्ट सम काइंड ऑफ लाइक कि अपने आप को आप सस्टेन कर पा रहे हो। और हाँ 2,500 इज अ वेरी मिनिमम अमाउंट कि आई एम जस्ट आस्किंग फॉर योर कमिटमेंट। आई हाँ गेट सो मेनी डीएम्स की आप बोलते हो आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन आप हम्म कोर्स फ्री, आप कोर्स का क्यों पैसे ले रहे हो? बिकॉज ये हाँ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि अगर सबके पास स्प्रेड होगी फिर तो 100 लोग, सब लोग एंड एक डीएम भेज देंगे। एंड थिंग्स ये ना यार, फ्री की वैल्यू कोई नहीं करता। एग्जैक्टली, आई इट्स अ बी वेरी कमिटमेंट ऑनेस्ट, अमाउंट, ये आप यूट्यूब पे इट्स नॉट डाल दो, अमाउंट। नहीं आएंगी इतने लॉयल लोग नहीं देखेंगे, और जो पैसे देके जब एग्जैक्ट होती है ना वो चीजों का डिफरेंस बहुत अलग हो जाता है भाई, यहाँ पे। मतलब मैंने 2,500 भी इसलिए रखा अमाउंट कि हम्म अ कॉलेज स्टूडेंट कैन बाय दिस एंड पसंद भी नहीं आया कोर्स, फॉर एग्जाम्पल यू बॉट दिस कोर्स एंड यू थॉट यार सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो थोड़ा सा लेकिन आउटरीच ज्यादा करनी पड़ेगी या सेल ज्यादा करनी पड़ेगी, तो हम्म इट इज एन अमाउंट कभी तुम्हें चुभेगा नहीं।
हाँ 2500 rupees is a amount big enough to commit it, but it's not big enough to make you say यार मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए. हाँ. इट्स आज के टाइम पे एक लंच आप खाने चले जाओ बिक्चल टाइप की जगह पे या कहीं पे भी आपका 2000 रुपीज का बिल आता ही आता है. एंड सो आई एम जस्ट आई बी आस्किंग वेरी दैट. ऑनेस्ट, यहाँ पे पैसे वेस्ट वाली बात तो यार कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने 70% खत्म किया है. सो उसमें लर्निंग्स बहुत ज्यादा है. हम्म. सो वो पैसे वेस्ट वाली तो वहाँ पे बात नहीं हम्म. है, वरना ऐसा कुछ होता तो मैं पहले ही बताता कि यार मजा नहीं आया मेरे को देख के. बट वहां से इट हेल्प मी टू हाँ क्लोज अ नहीं, आई वाज क्लाइंट. वेरी हैप्पी. सो वो चीज बहुत अच्छा है. या लर्निंग्स भी आपने लाइक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें मेंशन करी हुई है वहाँ पे. एंड लाइक यू वेरी मतलब इजीली मैंने. अवेलेबल वहाँ पे. लाइक मैंने आपको रात को टेक्स्ट किया, यू रिप्लाइड बैक इजीली. सो एक वो हाँ भी एक बहुत अच्छा पॉइंट. भाई, एग्जैक्ट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड कि थोड़ा सा वन हम्म. ऑन वन. आई जस्ट गॉट ऑन अ कॉल विद अ स्टूडेंट एज वेल. उन्होंने हम्म. सनी करके उनका नाम है. ही हम्म. सेड कि मतलब लाइक यू सेड कि उनको भी लगा 25,000 का होगा ये कोर्स. लाइक हम्म. लाइक दैट कॉमा इज समथिंग दैट एवरीबॉडी इज रियली मिसिंग हाँ आउट ऑन कि हाँ. वो है. बट इट्स जस्ट अ वे दैट आई फील कि मुझे भी मजा आ रहा है बिकॉज आई एम गेटिंग टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू स्टार्ट देयर एजेंसीज. मैं हम्म. देखता हूँ कि आज मैंने डीएम्स किए, आज मैंने कोल्ड ईमेल सेटअप किया. आई फील हम्म. हैप्पी सीइंग दैट. एंड मैं साइड साइड में अपनी एजेंसी चला रहा हूँ, तो इट्स जस्ट अ थिंग कि it's good to see a community get built up in हम्म. India as well. हम्म. And like you said, पैसे वेस्ट वाली बात तो है ही नहीं बिकॉज आई हैव ट्राइड टू प्रोवाइड एज मच वैल्यू. एंड मैं अभी या. भी मॉड्यूल्स अपडेट. ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार ही कर दिया अभी खत्म हो गया प्रोडक्ट. हम्म. बिकॉज हम्म. आई डोंट वांट कि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि हम्म. मैंने पहले सोचा था, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि वेबिनार मॉडल करने की. हम्म. बट समथिंग साइड ऑफ मी सेड कि अभी कोर्स रेडी नहीं है उस मॉड्यूल के लिए कि आई गेट अ लॉट ऑफ हम्म. पीपल हु वुड बी वांटिंग टू अर्न मनी क्विक. और ये हम्म. वो चीज नहीं है. आई रादर हैव कि जो लोग आए वो सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, दे वांट टू कमिट टू द वो. आई या. आई इफ यू सी द वीडियोस आर आल्सो नॉट 1 hour लॉन्ग. बिकॉज हाँ मुझे पता है किसी का 15 दिमाग नहीं मिनट, चलता. 8 मिनट, 9 मिनट मेरे को ऐसे. पता है हाँ किसी का दिमाग नहीं चल सकता एक हाँ. एक घंटा की वीडियो हम्म. देख के. तुम खुद ही लॉस्ट हो जाते हो. तो या. उसको डिवाइड कर दो, बेस्ट है. एंड हम्म. सारी की पॉइंट्स दो एक बंदे को कि जो की पॉइंट्स है जो एक्चुअली वर्क करता है. आई कुड हैव मेड द हम्म. कोर्स एंड सोल्ड इट कि 20+ hours ऑफ हम्म. कोर्स वर्क, ये वो मुझसे नहीं हुआ वो. हम्म. आई सेड I'd rather give you the exact points that will work, and what हम्म. will work is in 25 minutes, 30 minutes maximum. So, Shivam, you started at the age of 18, right? So, agency Hmm. वाली स्पेस में ups and downs बहुत आते हैं. Like client close हो रहा है and then he's like कि यार नहीं, मुझे तुमसे सस्ते में कोई मिल गया, या मुझे तुमसे Yeah. अच्छे में कोई मिल गया. So, how do you deal with ups and downs kind of these things? I would say ups and downs are is in any business, right? Hmm. चाहे आप कुछ भी कर रहे हो आज के टाइम पे. Yeah. पॉडकास्ट आप रन कर रहे हो, आपका एक पॉडकास्ट पे व्यूज कम है, आपको लगता है यार Hmm. ये क्या हो गया, Hmm. कुछ गलत करा क्या मैंने. Yeah. आज के टाइम पे भी last night I was up till 4 a.m. I was Hmm. recording a challenge on my Instagram which I'm doing 5 lakh rupees in 45 days या कुछ का Hmm. challenge I was thinking about. तो मैं उसके सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह लिख रहा था because I still get anxiety out of Hmm. SMM. It's not something that मतलब मैं पहले सोचता था कि 5 साल बाद तो अरे I'll be set. बट आज के टाइम पे भी वही Hmm. प्रॉब्लम्स है जो फर्स्ट मंथ में आती थी कि Hmm. क्लाइंट छोड़ के चला गया तो नेक्स्ट Hmm. क्लाइंट कहाँ से आएगा. नेक्स्ट क्लाइंट के Hmm. लिए तुम्हारा सर्विस डिलीवरी सही जा रही है कि नहीं, तुम्हारा टीम रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं, क्लाइंट खुश है कि नहीं. दीज आर ऑल थिंग्स दैट हैपन. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ ये है कि आप टू कीप द पाइपलाइन रनिंग. मेरे साथ Hmm. बीच में हुआ था 2 years बैक व्हेन आई वाज रनिंग वन लाइन लैब, जब भी डन फॉर रील्स नहीं थी. तो मेरा एक Hmm. प्लेटो पॉइंट आ गया था कि आई वाजंट डूइंग आउटरीच. मेरा ये था अरे हो जाएगा हो जाएगा. एंड देन वन Hmm. मंथ आई लॉस्ट 3 clients. And then I was like, यार ये तो मैं वापस you're coming down and then you need to Hmm. push that back up. And that's when I realized कि चाहे 3 client हो 5 client हो, you hire more people but you never say no to work because Hmm. जब आप वो नो कह दोगे वो चला जाएगा. फिर आपको लगेगा now you become the बादशाह. Now you Hmm. become somebody कि अब तो मेरे पास आ ही जाएंगे clients, and that's where your Hmm. downfall is. I Hmm. was looking at this podcast जो हनी सिंह ने किया था. Hmm. एंड हनी सिंह से पूछा था when did your downfall start in the Yeah. industry. Yeah. And he said जिस दिन मैंने बोला था मैं रब से भी बड़ा हूँ. I'm हाँ. like above God. And that is Hmm. when Rab was like मैं तुम्हारी जगह दिखाऊं. So he Hmm. always said have that thing in your mind कि Hmm. you have to always work for the next thing. It will not gonna come to you like Hmm. that. You need to work on it. And that's the सेम इशू दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग में आया. एक पॉइंट पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट डेड हो गई थी बिकॉज Hmm. पीपल वर लाइक रील्स रील्स रील्स. सो उसको अडेप्ट करने के लिए अगर मैं जिद पे रहता कि यार मेरे को तो बस ग्राफिक्स ही करनी है, देन माय बिजनेस वुड हैव बीन डेड बाय नाउ. Hmm. बट आई सेड कि अच्छा लोगों को रील्स चाहिए, चलो रील्स एडिटर ढूंढते हैं, कैसे एडिट करते हैं देखते हैं. एंड देन स्टार्ट ऑफरिंग दैट टू क्लाइंट्स बिकॉज यू नीड टू इवॉल्व विद द मार्केट. आज टाइम पे फेसबुक एड्स खत्म हुए तो टिकटॉक एड्स चलना शुरू हुए. Hmm. टिकटॉक एड्स पे आ जाओ फिर तुम. You need to keep evolving with the market. I'm not saying go to the silver spoon जहाँ पे भी पैसे दिख रहे हैं वहां जाओ, but you need Hmm. to
बी अवेयर इनफ ऑफ द फैक्ट कि अच्छा ये अब नहीं चाहिए क्लाइंट को ये चाहिए, तो हम्म, वर्क ऑन दैट इंस्टेड, बिकॉज outreach methods remain the same, your offer changes. So हम्म, as long as you keep up with the trend of offers, you will see. अब आप आज के टाइम पे शॉर्ट फॉर्म एडिट्स, you would know that short या form edits are the या thing at this time, right? हम्म, कल मे बी रील्स के अलावा वापस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बन जाए, वापस पीपल आर लाइक नहीं हमें तो हम्म, लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस चाहिए। तो टू हम्म, शिफ्ट फ्रॉम देयर टू दैट यू नीड टू हैव दैट इनफ नॉलेज इन इंडस्ट्री एंड हैव इनफ से कि तुम देख रहे हो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कि तुम्हारे को कब चेंज करना है कब नहीं चेंज करना है। आई थिंक दैट इज व्हाट हेल्प्स यू डील विद द अप एंड डाउन, की इट्स एन एवरी बिजनेस जस्ट अबाउट हाउ यू डील विद दैट थिंग। ओके। सो अगर कोई 18-19 साल का बंदा या बंदी जो भी ये देख रहा है, ठीक है, एंड दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट देयर एजेंसी, अभी एजेंसी स्पेस में या एंटर करना है, ठीक है, एंड बहुत कंफ्यूज है राइट फ्रॉम द नीश हम्म से, कैसे डील करना है क्लाइंट कॉल इन थिंग्स, उसको कुछ भी नहीं पता। सो आई वांट हम्म यू टू गिव अ क्विक रोड मैप कि लाइक ऐसे हम्म ऐसे 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 क्विक रोड मैप कि तुम कैसे स्टार्ट करो। The quick roadmap, social media marketing का I look at it as four fundamentals ओके। of running an agency. हम्म, वो फंडामेंटल्स होता है, पहला फंडामेंटल है आपका ऑफर एंड नीश। हम्म, उसमें आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप कौन से नीश को सर्व कर रहे हो। आर यू सर्विंग ऑटो, आर यू सर्विंग रियल एस्टेट, आर यू सर्विंग ई कॉमर्स। हम्म, आपका नीश डिसाइड हो गया। अब नीश के ऊपर जाके प्रॉब्लम्स ढूंढो, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, उनको हम्म, फेसबुक एड्स पे प्रॉब्लम फेस हो रही है, उनको क्रिएटिव्स में हो रही है, उनको हम्म, यूजीसी में हो रही है, किस में हो रही है। यू नोट डाउन एवरीथिंग, हम्म, टेक 1 to 2 days टू रिसर्च अबाउट दैट। हम्म, इसमें आपको पता लग जाएंगे दो तीन चीजें जो कॉन्स्टेंटली लोग कंप्लेन करें कि हमारे को ये इशू है। वो जो कंप्लेंट है उससे आप अपना ऑफर बनाओ। जो आपका ऑफर होगा वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कैसे हम्म, सॉल्व करेगा वो भी लिखो, कि फेसबुक एड्स में इशू है तो हम आपका एड्स मैनेजर आपके लिए सेटअप कर देंगे, आप प्ले कर देंगे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ओल्ड, हु आर रनिंग बिजनेसेस, या अब या उनको नहीं पता सोच, तो यू वांट टू मेक इट सिंपल, तो या प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेकिंग इट सिंपल फॉर देम। तो हम्म, आपने एक रोड मैप लिख दिया ऑफर क्रिएशन का। ये आपका हम्म, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, कि आपके पास नीश हम्म, आ गया और आपके पास ऑफर आ गया। नंबर 2 आपका हो गया आउटरीच। अब हम्म, आउटरीच मेथड सेटअप करने के आई बिलीव बहुत सारे मेथड्स है, बट आई गो विथ कोल्ड ईमेल, हम्म, कोल्ड डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड हम्म, अपवर्क और फाइवर। ये तीन मैं ओके, अपने मेन लेके चलता हूँ हमेशा। दीज आर द हम्म, थ्री दैट ऑलवेज वर्क फॉर एनी निश। हम्म, इन तीनों में से यू चूज वन, यू डू योर रिसर्च अबाउट हाउ टू स्टार्ट सेंडिंग आउट डीएम्स, हाउ टू हम्म, सेट अप अ कोल्ड ईमेल कैंपेन। यूट्यूब वीडियोस बतेरी है, मेरा चैनल है, बहुत सारे लोग हैं हु आर हम्म, प्रोवाइडिंग फ्री इंफॉर्मेशन आउट देयर। हम्म, बैठ के एक दिन उस चीज पे लगाओ, स्क्रिप्ट नेक्स्ट हो गई आपके। अब आपने कोल्ड हम्म, ईमेल डिसाइड कर लिया, कोल्ड डीएम डिसाइड कर लिया, अब अपने हम्म, स्क्रिप्ट लिखो। डोंट सेल ऑन द स्क्रिप्ट। आई गेट सो मेनी पीपल कि ये मेरे पैकेजेस है, आपको कुछ खरीदना है। आई ओनली हम्म, रिस्पॉन्ड टू दोस ईमेल्स जो मुझे एक रिस्पेक्ट देते हैं और एक एसेट देते हैं। यू ऑलवेज वांट टू प्रोवाइड समथिंग टू योर क्लाइंट फर्स्ट बिफोर यू आस्क समथिंग फ्रॉम देम। या तुम एक अननोन बंदे हो, मैं तुम्हारे साथ 15 मिनट के कॉल पे क्यों आऊंगा? आई डोंट नो हाँ, यू, व्हाई वुड हाँ, आई गिव 30 minutes ऑफ माई टाइम इफ आई एम रनिंग अ 10 crore बिजनेस, यू या नो? यू एग्जैक्टली, नीड टू हैव द परसेप्शन ऑफ टाइम। तो बट अगर हाँ, आप मुझे कुछ फ्री में प्रोवाइड करो, ना फाइंड वैल्यू इन दैट, आई वुड कम टू यू एंड से यार लेट्स गेट ऑन अ कॉल, मे बी दिस हम्म, साउंड्स इंटरेस्टिंग। हम्म, बिल्ड अप दैट। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्विस डिलीवरी, कि जो तुम प्रॉमिस कर रहे हो अपने आउटरीच में उसको तुम कंप्लीट करो। आई ऑलवेज बिलीव प्रॉफिट मार्जिन कम रख सकते हो। आई यूज्ड टू बी दैट पर्सन जिसको 100% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए होते थे। हम्म, कैनवा पे आई वाज़न्ट दैट गुड, बट मैं फिर भी करता था। एंड द डे आई गॉट अ डिजाइनर टू डू दैट, द क्वालिटी ऑफ कंटेंट रोज लाइक एनीथिंग। एंड आई क्लोज 3 new clients जस्ट बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया था। लाइक माई हम्म, पोर्टफोलियो इंप्रूव सो मच दैट पीपल लाइक ये ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, ये वाली चाहिए मेरे को। सो हम्म, even though I lost that 30% margin in my business, but I got 2 new clients out of that. हम्म, And it's always easier to keep a client for a longer time than sign new clients every day. हम्म, रिटेंशन इज की। आज के टाइम पे आपने जो 2 क्लाइंट आपने क्लोज किए और ये हम्म, तीसरा जो क्लोज किया, अगर हम्म, ये 3 क्लाइंट आपके 6 महीने तक रह गए, तो यू हम्म, आर गेटिंग 6 into 3 18 पेमेंट्स फ्रॉम दैट क्लाइंट, या वर्सेस अगर आपको एक महीने छोड़ के चले गए, देन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू दोस टूल्स अगेन, देन यू आर डूइंग आउटरीच अगेन, सेल्स अगेन, एवरीथिंग। हम्म, बट वो बंदा एक बार आप पे बिक गया है, तो आपको बस वो सर्विस प्रोवाइड करना जो आपने प्रॉमिस की थी, और वो सर्विस पे ही तो बिक गया है, तो क्यों छोड़ के जाएगा आपको? हाँ, अनलेस या देयर आर थिंग्स दैट हैपन, चीपर मिल गया, ये मिल गया, बट यू हम्म, नो योर स्टैंडर्ड। और this is like 20% cases. मेरा longest client has been 3 years in running till now. हाँ, I don't हाँ, even talk to that client anymore. मेरा हम्म, invoice जाता है, वो pay करते हैं, that's it. This is one conversation I have on Slack. If you check my Slack, it's just like, hey, here's the invoice for this month, invoice paid. हम्म, Here's the हम्म, invoice for this month, invoice paid. हम्म, क्योंकि उसे पता है मैं बैक एंड पे काम कर रहा हूँ। He doesn't, he हम्म, trusts me that much, उसको फर्क नहीं पड़ता
मैं एक हफ्ता भूल गया था, तो मैंने खुद से एक हफ्ता आगे बिलिंग की, एंड आई रोट टू आई लाइक 1 वीक देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द शेड्यूलर. सो Hmm. बिकॉज वो ट्रस्ट बना रहना चाहिए, यू नेवर Yeah. वांट टू चीट अ क्लाइंट फॉर 1 वीक 2 वीक्स और वट एवर, बिकॉज लॉन्ग Hmm. टर्म में वो बंदा तुम्हारे को और क्लाइंट्स ला के देगा और तुम्हारे से लंबे टाइम तक रहेगा. It's सो basically आई it's all वुड से about दीज आर द how फंडामेंटल्स. well you form a relation with your client mainly. Exactly. Yeah. And like I said, treat them as a person, not as a number, and you will be Hmm. golden. Hmm. Okay. So So अभी एक these are, I would क्वेश्चन. say, the हाँ, fundamentals. अभी एक क्वेश्चन जिसके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे. How much does Shivam Gupta earn per month? Earning, again, social media management, social media marketing industry में is not certain, because Okay. obviously client आते हैं, client जाते हैं, एक दिन हाँ एक महीना हाँ होता है. हाँ हाँ. YouTube पे I get honestly commissions from softwares which I'm teaching on my YouTube channel. हम्म. So all in all मिला के, I would say revenue wise we do about 6 lakhs to 7 lakhs a month at the moment. हम्म. उसमें से अगर आप प्रॉफिट देखो तो about 5 lakhs a month का हो जाता है, because YouTube is again 100% I do it myself. जो जाते हैं वो मेनली रील्स एडिट्स और वन लाइन लैब्स के लीड ऑर्डर्स में जाते हैं, जो हमारे मनी है. एंड फिक्स्ड एक्सपेंस कुछ नहीं है एजेंसी में, बिकॉज when you're running an agency, your fixed expense is zero. Yeah. At the end of the day, you are only paying your team when they are doing the work for the client. अगर आपके पास client नहीं है तो आपकी टीम को कुछ पैसे नहीं मिल रहे. जब आपके पास client है तो आपकी टीम को पैसे मिल रहे हैं. So it's a very lean business model to work with, and it's a business model that you cannot have a loss with ever. आपका वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक बार जब रिकूप हो जाती है, उसके बाद यू कैन नेवर हैव अ लॉस विद सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी. तो अभी आपके पास कितने लोगों की टीम है, लाइक फ्रीलांसर्स पे मेनली है या हायर करे हुए लोगों को? So I have one manager in the company. So manager वन लाइन लैब्स में जो लीड जेन और पर्सनलाइज फर्स्ट हैंड राइटिंग एजेंसी है, उसको संभालते पूरी तरीके से, बिकॉज देयर सो मेनी राइटर्स जो फ्रीलांस राइटर्स होते हैं, जो पर्सनलाइज फर्स्ट हैंड लिख रहे हैं, सो मेनी पीपल जो लीड जनरेट कर रहे हैं. आई पर्सनली डिडंट हैव द टाइम कि मैं सबको हैंडल कर पाऊँ. तो she was one of the writers and she was the best writer that I had. So I hired her as the manager of the company. And I said, the company is in your hands. I'm going to bring in the orders, but the quality of work is dependent upon you. And when you hire from somebody from inside a company to that higher post, they are more motivated to work because, and they know everybody around them. She knew the whole team around her and she was always friends with them. तो एक वो manager position पे जो आई, तो I got removed, but they got more comfortable with her because they were like, कि अच्छा ये तो like she's one of us only kind of a thing happened. The rest of them are mostly on commission basis in terms of जब काम होता है. We've got 3 reel editors for done for your reels. We've got 1 social media manager, and rest are all writers. एक टाइम पे पीक पे जब first lines were at its peak in cold email, we had 15 writers working for us. आज के टाइम पे there are about 5 writers जो regularly काम करते हैं, and rest जब orders are big enough, then that is when they come into the company. So शिवम, वन मोर क्वेश्चन अबाउट द एजेंसी स्पेस. लाइक बहुत सारे लोग अभी, लोगों के कमेंट्स होते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी सैचुरेट हो गई है. लाइक Hmm. सोशल मीडिया ही सैचुरेट हो रहा है, राइट? सो वो Got it. आपने भी बहुत सुना होगा मेनली. एंड सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट पार्ट? 100%. I don't believe social media is saturated at all, because अगर आप आज के टाइम पे जाके सर्च करोगे गूगल पे how many e-commerce stores actually exist, you will find millions में they're या. existing, right? मतलब आप शॉप्स ले लो, सोलर नीश ले लो, आप रियल एस्टेट एजेंट्स ले लो, आप realestate.com पे चले जाओ, you will see so many real estate agents exist. आप LinkedIn पे जाके सर्च कर लो. There is everybody needs social media. It's about whether they understand they need social media right now or they understand it 6 months later. They would need social media because हाँ. आज के time पे social media is the up and coming thing, and it is a thing that has evolved into such a place that it is here to stay. आज टाइम पे थ्रेड्स पे आप देख लो, थ्रेड्स जैसे लॉन्च हुआ कितने मिलियन यूजर्स आए थ्रेड्स पे. दैट या. शोज आज के टाइम पे भी देयर इज need of a new platform still. अगर एक new platform आ रहा है, how many people are rushing into it? I remember Threads जब launch हुआ था, उसके within 15-20 minutes I signed up, and 45 minutes बाद I was seeing posts such as, do you want to be on Threads, contact us, or here are 5 tips to grow on Threads. अरे भाई, तुम 10 मिनट हुए हो Threads पे, अभी हो, तुम्हें अभी से पता है कैसे ग्रो करना है. अभी तक मार्क जकरबर्ग को नहीं पता कैसे Threads पे ग्रो करना है, और तुम्हें पता है कैसे ग्रो करना है. So it's just one of those things कि social media is going to exist and it is going to exist in the future as well. It's just about, I'll be very harsh, it's a bahana for a lot of people to say it's saturated. ड्रॉप शिपिंग को आप ले लो, ड्रॉप शिपिंग भी लोग कहते हैं बहुत सैचुरेटेड है. आई ट्राई ड्रॉप शिपिंग ऑन माई ओन लास्ट मंथ और सो. आई मेड सेल्स. आई जस्ट डिडंट लाइक द बिजनेस मॉडल, सो आई स्विच्ड इट ऑफ कि नहीं भाई मेरे को नहीं करना, बिकॉज
आई एम यूज्ड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्रॉफिट मार्जिन्स एंड हम्म। ड्रॉप शिपिंग में ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ लाइक हाँ। आ रहे हैं, आरटीओ है तुम्हारा, ये वो चीजें हैं जो हम्म। मेरे लिए पर्सनली नहीं बैठा. I got sales within 3 days of my running my Shopify store. So हम्म। there's nothing that is not saturated or there is कि ये चीज अब खत्म हो गई है. आज के हम्म। टाइम पे टीवी भी चल रहा है, इवन दो एवरीबॉडी सेज टीवी खत्म हो गया है. आज के टाइम पे टीवी शोज देखती है हमारी दादी, देखती है हमारी हाँ। मम्मीज, बिकॉज टीवी हाँ। शो वही चला रही है. हम्म। There's always an audience for somewhere and something is always gonna get it up. टाटा स्काई जब, हम्म। इफ यू रिमेम्बर, जब नेटफ्लिक्स वगैरह स्टार्ट हुआ था, एवरीबॉडी सेड टाटा स्काई इज डेड. अब तो हम्म। टाटा स्काई खत्म हो जाएगा. एंड दैट इज व्हेन हम्म। दे केम अप विद द स्ट्रीमिंग बॉक्स, जिसमें या तुम्हें टाटा स्काई भी मिल रहा है, नेटफ्लिक्स मिल रहा है, सब प्राइम भी मिल मिल रहा रहा है, है, हाँ। हॉटस्टार भी मिल रहा है. हम्म। बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग विद द स्पेस. लाइक आई सेड, इवॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जब तक इवॉल्व करोगे कोई चीज सैचुरेट नहीं होती, अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट. हम्म। हम्म। अब यहाँ पे एक चीज थी कि सोशल मीडिया पे लीड्स फाइंड आउट करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? एंड लीड्स के लिए लाइक आपकी भी एजेंसी है, यू प्रोवाइड लीड्स. सो फॉर अ फ्रेशर जो राइट. अभी नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं अपनी एजेंसी ले लेता हूँ. आई एम इनटू कंटेंट क्रिएशन हम्म. स्पेसेस एंड वीडियोग्राफी एडिटिंग एंड थिंग्स. सो अगर मुझे लीड फाइंड आउट हम्म. करनी है, आई एम फ्रॉम पुणे, ठीक है? सो व्हाट इज द हम्म. बेस्ट एंड फ्री वे मैं लीड्स फाइंड आउट कैसे करूँ? आप गूगल कर सकते हो. आपको अगर आप यू सी गूगल एंड इंस्टाग्राम आर द बेस्ट रिसोर्सेज टू फाइंड इट. हम्म। हैशटैग स्ट्रैटेजी है, हैशटैग हमारे से फोटो के नीचे जो लगता है, दैट हम्म। एक्चुअली गोज ऑन द एक्सप्लोर पेज. तो हम्म। आज के टाइम पे मान लो आप एडिटर और आपको माइंडसेट कोचेस की रील्स एडिट करनी है, तो हम्म। आप बस जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे हैशटैग माइंडसेट कोच, और आप टॉप से देके रीसेंट पोस्ट पे चले जाओगे. आपको रीसेंट पोस्ट पे सारे वो रीसेंट पोस्ट आ जाएंगे जो माइंडसेट कोचेस ने हैशटैग डाल के किए होंगे. सो हम्म। यू क्लिक ऑन द प्रोफाइल, यू सी क्वालिफाइड इनफ. उनके यूजुअली कोचेस के बायो में होता है कि दे आर अ कोच, और हम्म। some kind of quote or something which you can recognize what is a coach page and what is just a normal page. आपको वो हाँ. पहली लीड मिल गई. आप उस लीड को मैसेज करोगे, आपका जो भी मैसेज है, और उनके लीड के साइड पे प्लस सिंबल होता है. अब वो हम्म. प्लस सिंबल क्लिक करोगे, आपको उसके नीचे और माइंडसेट नीचे कोचेस हाँ आ जाएंगे सिमिलर जो और लीड्स आएगी. हम्म. एग्जैक्टली जो इंस्टाग्राम सजेस्ट करेगा. तो आपको हम्म. ये अपना नीश मिल गया इंस्टाग्राम पे. हम्म. चलते गूगल के साइट पे, अगर आपको लोकल लीड जन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर नीश हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये हम्म. सारे लोग मे भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है. कोचेस वगैरह होंगे बिकॉज दैट इज वेयर दे सेल. अब हम्म. आपको ये देखना है कि रियल एस्टेट एजेंट्स कहाँ सेल करते हैं अपने वेबसाइट पे. हम्म. आप सर्च करोगे रियल एस्टेट एजेंट्स इन न्यूयॉर्क, आप हम्म. जाओगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी. वेबसाइट्स को छोड़कर अगर आप मैप्स ऑप्शन में जाओगे, आपको मैप्स ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी लिस्ट आ जाएगी ऑफ 20-25 पेजेस, जिसमें हम्म. गूगल बिजनेसेस होते हैं लिस्टेड कि दे आर अ बिजनेस. अगर आप उस पर क्लिक करोगे, आपको उनका फोन नंबर मिल जाएगा, आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगी. हम्म. वेबसाइट पे क्लिक करोगे, आपको नीचे उनकी ईमेल मिल जाएगी. और देयर हम्म. टूल्स लाइक hunter.io, अपोलो, ये सब. अगर आपको हम्म. पेड रूट जाना है, कि आपको ऑटोमेटिकली उनकी ईमेल्स मिल जाएगी. जब आपको हम्म. एक फ्री रूट जाना पड़ता है, जस्ट दैट हैव टू पुट इन अ लिटिल वो मैनुअल लेबर, हम्म. वर्सेस व्हेन यू आर गोइंग द पेड रूट, वो आपका एक सॉफ्टवेयर या फिर एक SaaS कंपनी आपको हेल्प आउट कर देती है. या हम्म. मेरी जैसी कंपनी आज के टाइम पे, वन एल ऐप ऑर्डर्स इसलिए आते हैं बिकॉज द एजेंसी ओनर्स आर टू बिजी. They हम्म. don't want to be in the lead gen procedure at all. They हाँ. just want कि मेरा एक client है who's been working with me for over 1 year. He हम्म. messages me on WhatsApp. He says 1,000 leads this month, Shivam, please. Same criteria as last time. मैं उसको हम्म. बोलता, उसको इनवॉइस जाता है, वो पे करता है, उसको व्हाट्सएप पे मैं लिस्ट के लिंक भेज देता हूँ. देन ही जस्ट थम्स अप द लिस्ट. देन नेक्स्ट मंथ, हे शिवा, 1,000 न्यू लिस्ट. बिकॉज इनको पता है कि ये लीड्स काम कर रही है. मेरे को क्यों हम्म. एफर्ट डालू मैं चीज जो मैं $400 जिस चीज के दे रहा हूँ, मेरे को $4,000 कमा रहे. ही डजंट नीड टू थिंक अबाउट इट. ही इज लाइक, कर दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. वो 10% कॉस्ट, आई एम ओके टू लेट गो. वर्सेस देयर लॉट ऑफ एजेंसी ओनर्स जो कहेंगे कि नहीं यार, मैं तो खुद कर सकता हूँ, या मैं हम्म. फाइवर पे जाके हायर कर सकता हूँ, या फिर मैं एक वीए को हायर कर सकता हूँ, एंड वो हाँ. कॉस्ट डाउन कर सकता हूँ. इट्स अबाउट प्रायोरिटीज ऑफ द पर्सन. There's a हम्म. free route, there's a VA route, there's a paid route, and there's a us route. So there's so many routes about the same thing. It's just about the time and the money commitment you have to give to both of हम्म. them. हम्म. ओके. सो यू स्टार्टेड पर्सनल ब्रांडिंग, अभी इंस्टा यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं एंड थिंग्स. ओके. सो पर्सनल Yeah. ब्रांडिंग के बेनिफिट्स क्या हुए अभी तक? अभी आई थिंक अच्छी खासी हो गए, 10-15,000 फॉलोअर्स हुए हैं, राइट? तो उसका Yeah. बेनिफिट क्या है? लाइक हैव यू गॉट एनी बेनिफिट, क्लाइंट्स वहां से आए हो या ऐसा कुछ बेनिफिट हुआ है? I would say benefit is more being on YouTube हम्म. because YouTube is the only algorithm on social media that works in the long term in your favor. हम्म. आज टाइम पे आपने यूट्यूब वीडियो डाली, और मेरी जो अभी तक एक बहुत हाईएस्ट व्यूइंग वीडियो है अबाउट अ सॉफ्टवेयर है instantly.ai, हाउ टू सेट अप हम्म. instantly.ai वाया कोल्ड ईमेल. हम्म. वो जब मैंने वीडियो डाली थी, इट
got maybe 25 views or something, and I Hmm. forgot about it. Hmm. Yesterday, I checked my channel dashboard. That video is now on 5,000 views. That means Hmm. 5,000 people have searched for the software. मैं सबसे टॉप पे आया हूँ, एंड मेरे एक रेफरल लिंक है नीचे जिसपे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा बंदे को, बट बिकॉज मैंने उनको सिखाया वो उस पर क्लिक करते हैं, एंड Hmm. दैट सॉफ्टवेयर, दैट वन वीडियो दैट आई टुक 30 minutes to record, 15 minutes to Hmm. edit, my 1 hour of work has Hmm. got me over $500 in commissions from that software. Hmm. दैट इज एडवांटेज ऑफ यूट्यूब कि मैंने Hmm. वैल्यू दी, उनको वैल्यू लगी, उन्होंने वो लिंक क्लिक करके चीज खरीदी, एंड दैट इज Hmm. वेयर आई गॉट रेफर्ड. मुझे Hmm. बहुत सारे आते हैं. आई डिड अ वीडियो ऑन टैपलियो. टैपलियो Hmm. एक सॉफ्टवेयर था अबाउट लिंक्डइन. Hmm. उस टाइम पे टैपलो बहुत चला था, तो आई वाज फिगरिंग आउट लिंक्डइन. तो मैंने टैपलो को डाल दिया था, टैपलो इज देयर, एंड आई गॉट Hmm. रीच्ड आउट टू बाय दिस वन कंपनी हु दिस गाय, yeah, in Shark Tank US में, who's that guy? I can't remember, the guy who owns a basketball team. No, but I don't know. Mark, Mark, I can't remember the surname, हाँ. but he is basically an investor in that agency. And उस Hmm. एजेंसी के ओनर ने मुझे मैसेज किया कि कैन यू Hmm. हेल्प मी सेट अप अ टैपलियो अकाउंट. I said, sure. Hmm. And he said, I'll pay you for a 1 hour consultation call. I said, okay. And he paid me $150 for 1 hour of work, जो मैंने exactly उस YouTube video पे दिखाया था. But just Hmm. because he wanted me to be on Zoom call with him to show him. I had Hmm. a lot of instantly calls as well. Instantly मेरा setup करवा दो, मेरा warm up setup करवा दो, मेरी cold email की script देख लो. And these are all the perfect plans for done for one line labs, because जब Hmm. ये मेरे से बात कर रहे हो तब कॉल पे दे आर फिगरिंग आउट द कोल्ड ईमेल कैंपेन, तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बीच में कि अच्छा आपने लीड्स के लिए क्या कर रहे हो. तो देन दे गो Hmm. लाइक, अरे यार लीड्स मेरे को छोड़नी है ये वो. तो हाँ. आप भी तो कुछ करते हो ना लीड्स के लिए. एंड देन ऐसे, हाँ मेरी कंपनी है वन लाइन लैब्स, यू कैन ऑर्डर लीड्स. Hmm. एंड 8 out of 10 of those order leads from me. So Hmm. I got them on a call because they DM'd me saying कि मेरे को setup करवा दो. They paid for that call, and on that Hmm. call they got upsold to a lead list. So Hmm. that is the advantage of content. और Instagram पे ज्यादा advantage I would say मेरे को Indian audience का हुआ है, because you मेरी YouTube पे इतनी Indian audience नहीं है. I would say मेरी YouTube पे ज्यादा foreign audience है, because I Hmm. more talk about like जो softwares and all जो US UK में ज्यादा famous है. So I Hmm. feel people who go on my channel are those kind of people. तो उस पे मेरे को मेनली एसएमएम में इंक्यूबेटर का एडवांटेज हुआ है कि व्हेन आई लॉन्च्ड माय कोर्स, I wasn't planning to launch the course. I actually went to Goa to surprise my mom and my grandmother Hmm. on a trip. They were both were on a trip, and I went there, and मैं लाउंज में बैठा हुआ था, एयरपोर्ट लाउंज में. एंड आई had Hmm. been thinking about this course for a long time, और मैंने मॉड्यूल सारे लिख दिए थे, बट आई वाज Hmm. अनश्योर अबाउट इट. तो मैंने बस एक स्टोरी डाल दी अपने लैपटॉप की क्लिक करके कि गोइंग टू लॉन्च दिस कोर्स सून, आर यू गाइस इंटरेस्टेड. Hmm. एंड मेरा यूपीआई 2-3 स्टूडेंट्स के पास था, तो जब तक मैं लैंड किया, आई ऑलरेडी गॉट 5 पेमेंट्स इन माई बैंक अकाउंट, बिकॉज दे वर लाइक, Hmm. या वी वर वेटिंग फॉर अ कोर्स फ्रॉम यू. एंड उस Hmm. टाइम मैंने फिर गोवा में बैठ के वो पूरा कोर्स लिखा था. एंड देन व्हेन आई Hmm. केम होम, आई रिकॉर्डेड द न्यू मॉडल्स वगैरह ऐड हुए. बट Hmm. वो इंस्टाग्राम ने मुझे एडवांटेज दिया कि आई सॉ कि अच्छा लोगों को चाहिए, तो व्हाई डोंट आई रिकॉर्ड इट एंड देन सी कहाँ जाता है. एंड आज तक सारे एसएमएम इंक्यूबेटर से which have been 50 plus at this time have all Hmm. come from Instagram. You maybe found me Hmm. on YouTube, Yeah. followed me on Instagram, बट इंस्टाग्राम इज दैट पर्सनलाइज्ड मोर प्लेटफॉर्म, बिकॉज स्टोरीज डाल सकते हो, एक दूसरे से चैट कर सकते हो. Hmm. while Hmm. यूट्यूब इज दैट वैल्यू जनरेटिंग प्लेटफॉर्म जो तुम्हारे को एज अ पर्सनल ब्रांड एस्टैब्लिश कर देता है. सो आई हैव Hmm. यूज्ड द मिक्स ऑफ इट, एंड आई वुड से पर्सनल ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समबडी, बिकॉज इंडिया में स्पेशली आई वुड से कि पीपल आर शाय अबाउट Yeah. एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स ऑन Yeah. यू नो. Yeah. Yeah. मैं पेमेंट स्क्रीनशॉट्स भी डालता हूँ, मेरे को भी पसंद नहीं Hmm. ऑनेस्टली, लाइक मेरे को भी लगता Hmm. है कि यार नजर ये वो वाली चीज होती है. इंडियन हाउस होल्ड व्हेन यू आर लिविंग, यू डू फील. Hmm. व्हेन आई बॉट माय न्यू कार, आई पुट इट ऑन यूट्यूब, एंड मेरी गाड़ी के ऊपर गमला गिर गया था जिसका पूरा कांच शैटर हो गया था विद इन हाँ. 1 month ऑफ डिलीवरी. सो Hmm. मेरी मॉम का ये हो गया था कि तुमने यूट्यूब पे डाला था इसलिए नजर लग गई नजर गाड़ी लग को, गई. ये हाँ. you know. So but I was like, but I want to be open enough, because इस Hmm. space में there are so many people who are just not open enough with their own agency. People are Hmm. open enough with the student results but not with their own agency, and I Hmm. wanted to show कि मैं एक agency run कर रहा हूँ, and वो मैं daily पे कर रहा हूँ. That is why I'm qualified enough to teach you how to do it. If Hmm. I didn't do the same, I wouldn't be qualified enough to teach you the same. Yeah. तो Instagram मैंने उस वे में यूज किया, while YouTube was more towards the agency side and software side and Hmm. commission side of things. आपकी जब वो स्टोरी देखी थी ना पेमेंट्स वाली, तो आई थॉट कोई स्कैम है, क्योंकि वो लोग स्कैमर्स पता है, दे पोस्ट दिस Yeah, एवरी डे कि इतना yeah, पैसा है इतना पैसा है, तो ये तो yeah, पक्का स्कैम है. बट फिर मैंने थोड़ा yeah, थोड़ा ऑब्जर्व किया, मैंने नहीं स्कैम तो नहीं है, कि यूट्यूब पे भी हो yeah, देखा था.
एंड देन फिर पता चला कि या नहीं, हाँ जस्ट काइंड ऑफ अ प्रूफ कि हाँ ये आ रहा है चीजें, लोग वो होना चाहिए, राइट। या मेरे या को अभी मतलब भी। आई स्टिल गेट हाँ। कमेंट्स ऑन माय हम्म। बोलो बोलो। ही सेइंग कि लाइक हाँ। इतना पैसा कमा रहा है तो लोगों को सिखा रहा है, ऐसे स्क्रीनशॉट तो मैं भी बना दूं। अरे तो बना दो भाई, मेरे को मेहनत नहीं करनी बनाने की। मतलब मेरे को एंड लाइक ऑनेस्टली आई जस्ट लेट दोस कमेंट्स बी, बिकॉज वही नेगेटिव एनर्जी होते है। बिकॉज इंडिया में ये परसेप्शन है थोड़ा सा कि लाइक स्कैम्स यार, बिकॉज है इंडिया में बहुत। आई डोंट ब्लेम पीपल बिकॉज देयर सो मेनी पीपल जो कहते हैं 10 रुपए यूपीआई भेज दो, ये कर दो, वो हाँ कर दो। हाँ। There are so many things in India that you have to be wary, and that's why हम्म, I made sure कि जब मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हो उससे पहले I do have a reputation online। अब आज के टाइम पे मुझे कोई भी बोलता है भाई तू कैसे सिखा रहा है, तो आई ऑलवेज हम्म, से गो टू माई यूट्यूब। मैं 1 साल से ये चीज कर रहा हूँ, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड इट इनटू अ पेड पैकेज नाउ। तो हम्म, जब लोग यूट्यूब देखते हैं तब उनको बिलीव होता है कि अच्छा बंदा रियल है, क्योंकि आप एक अननोन इंस्टाग्राम हम्म, प्रोफाइल पे आके नहीं खरीद पाओगे। हाँ। आप खरीद पाओगे ट्रस्ट बिल्ड करके, उस हम्म। बंदे पे ट्रस्ट बिल्ड करोगे तभी आप एक चीज परचेज कर पाओगे उससे। और आजकल फेक अकाउंट्स का भी बहुत चल रहा है, आपका बनाया बाकी है अभी तक? हाँ, बन ट्रेडिंग गया? का बना हुआ है मेरा। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि मेरे बनेगा ही, तीन मुझे पता है। कल मेरे मैंने आई तीन चार। थिंक, हाँ, लूक बेलमार को फॉलो किया कल या परसों के हम्म, टाइम पे, एंड हम्म, मुझे हाँ 4 लूक बेलमार के फॉलोज आ गए। वो होता तो है। एंड हाँ, वो चल रहा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड को उन्होंने भेजा वो रिक्वेस्ट, हाँ। एंड शी रिप्लाइड, शी सेंड मी अ स्क्रीनशॉट सेइंग कि ये तेरा नया अकाउंट है, बिकॉज दे हैड कॉपीड एवरीथिंग टू द टी, एंड दे जस्ट रोट हे इन द या। वो, एंड जैसे वो हाई करते हैं तो इनके लाइक यू गेट टू नो फेक है, क्योंकि दे प्रॉमिस लाइक 1000% रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वो, मतलब दे डोंट इवन ट्राई टू बी रियल अबाउट इट। एंड मेरे को वेरीफाइड टिक नहीं मिल रहा फॉर सम रीजन, माई मेटा अकाउंट इज नॉट लेटिंग मी बाय द टिक। मेरे को हम्म। टिक इसलिए खरीदा है सो दैट पीपल नो कि ये मेरा या। रियल अकाउंट है, बाकी हाँ सारे। हाँ। बट एंड द यूजर नेम आल्सो देव केप्ट इट इन सच अ वे, देव केप्ट माय होल यूजर नेम, बस पी मिसिंग है गुप्ता का। तो इट्स शिवम हम्म। गुप्पा को। सो व्हेन हम्म। पीपल लुक एट इट इन द डीपी दे फील लाइक, एंड दे हैव 1000 फॉलोअर्स ऑन दैट अकाउंट जो फेक फॉलोअर्स खरीद लिए, हाँ, एंड सारी मेरे पोस्ट्स हैं। सेम तो फॉलोअर्स, दे सेम पोस्ट, लाइन वाइज एंड एवरीथिंग। बट जब तुम जाओगे फिर दिखेगा कि लाइक तो एक ही, लाइक हार्डली एक एक है, से और दो को लाइक है। हाँ 3 डेज अगो, 3 डेज अगो, 3 डेज अगो, सारे हाँ 3 डेज अगो वाले। हाँ हाँ हाँ। एंड मेरे को कितने लोगों का आई ऑलमोस्ट फेल फॉर इट, आई ऑलमोस्ट फेल फॉर इट। और मैंने स्टोरी वगैरह डाली थी कि फेक अकाउंट्स आर देयर, बीवेयर। और हम्म। इंस्टाग्राम पे काफी लोगों से रिपोर्ट भी करवाया, बट फॉर सम रीजन इंस्टाग्राम ने टेक डाउन ही नहीं किया अभी तक। वो नहीं एंड कर रहे, किसी का हमारे टेक जो डाउन नहीं हो रहा है। जो रियल अकाउंट होते हैं उनको टेक डाउन कर देता है इंस्टाग्राम, लेकिन फेक अकाउंट्स को नहीं करेगा। रियल अकाउंट पे 40-50 रिपोर्ट पड़ गई, वो टेक डाउन कर देंगे। हाँ वो मेन अकाउंट्स को वो वो नहीं कर रहे। भाई दैट्स वेरी वियर्ड, बिकॉज सर्च गटारी भी है। आई गेट एवरी डे एक सर्च गटारी की रिक्वेस्ट। एक हम्म। कैलम नोलन करके मेरा पुराना क्लाइंट था, उसकी हर रोज एक रिक्वेस्ट आती है किसी अननोन अकाउंट से, बिकॉज जो बंदा हल्का सी ट्रैक्शन गेन कर रहा होता है उसका फेक अकाउंट बना लेते हैं वो, बिकॉज दे वांट हाँ। टू कैपिटलाइज ऑन द फेम दैट द पर्सन इज गेटिंग, व्हिच या। इज। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ, इतना टाइम तुमने स्पेंड किया मेरे इंस्टाग्राम डाउनलोड करने में, सब चीजें करने में, यू कुड हैव डन समथिंग लेजिटिमेटली। चाहे तुम हाँ, सर्वेज ही ऑनलाइन कर देते, दे कुड हैव डन अ सर्वे ऑनलाइन एंड अर्नड मोर मनी देन दे वुड हैव स्कैमिंग पीपल। एंड दैट इज जस्ट द हार्श रियलिटी ऑफ एग्जैक्टली है ना। थिंग्स। आजकल तो सबको पता चल जाता है पहले ही, क्योंकि वो रिक्वेस्ट में चली जाती है, फिर सामने से तुम्हें क्यों मैसेज करेगा वो बंदा? वो एक पॉइंट ही नहीं, तुम इतने बड़े, तुम कोई छो नहीं कि तुम्हें को सामने से वो मैसेज करेगा। तो पहली बात तो वहां पे लोगों को समझ जाना चाहिए। एंड अगर कर भी रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस करो देखने की कि हाँ यही अकाउंट है कि। हाँ, एटलीस्ट प्रोफाइल में एंड जाके दैट्स खोलो, चेक करो एंड थिंग्स एंड थिंग्स। एक बार बस, मैं तो बस ये करता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके बस क्लिक कर लो कि कितने दिन पुरानी पोस्ट है। हाँ अगर दिखा है 3 डे, बिकॉज लाइक्स खरीद सकते हो, व्यूज खरीद सकते हो, सब कुछ हाँ खरीद सकते हो, लेकिन डेज नहीं हाँ खरीद सकते। हाँ दैट्स द ओनली थिंग दैट इंस्टाग्राम डजंट अलाउ यू कि आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। फेसबुक पे यू कैन बैक हाँ। ट्रैक ऑल्सो। फेसबुक ओ। वगैरह क्रिएटर स्टूडियो पे जाओ और बोलो हम्म। कि दिस पोस्ट आप दिखा दो कि 1 जून को वो हुआ था, आज मैं पोस्ट हम्म। करूँ तो 1 जून को चला जाएगा, बट इंस्टाग्राम अलाउ नहीं करता ये चीज। हम्म। तो एवरीथिंग कैन बी बॉट एक्सेप्ट कि तुमने फोटो कब डाली थी, एंड हम्म। दैट इज वेयर यू कैन विन द गेम एज अ रियल पर्सन वर्सेस अ फेक हाँ, फॉलोअर। अब फेसबुक से बात आई। फेसबुक ग्रुप्स, जो आई थिंक बहुत अंडररेटेड चीज है। आधे लोग तो हम्म। यार यूज नहीं करते कि यार फेसबुक कौन यूज करेगा, वो तो पापा पापा लोगों का टाइम का ऐप है। या तो मैं या आई बी वेरी ऑनेस्ट, ग्रुप ज्वाइन करने से पहले मैं भी यूज नहीं कर रहा था। मैंने ग्रुप हम्म। ज्वाइन करने के लिए एक अलग अकाउंट बनाया एंड देन आई जॉइन द ग्रुप। ठीक है, तो या आई सॉ फेसबुक। आपका अकाउंट था 3 डेज अगो या कुछ। हाँ, तो मैंने नया अकाउंट हाँ बना के मैंने ज्वाइन किया था फेसबुक पे। हाँ तो हाँ। वहां पे लाइक आपने फेसबुक क्यों चूज किया? लाइक ना व्हाट्सएप ग्रुप, ना टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप क्यों चूज किया? एंड एडवांटेजेस क्या है? लाइक फेसबुक ग्रुप से भी लीड्स एंड ऑल का काफी सारा मैंने सुना हुआ है।
या फेसबुक ग्रुप सेलिंग एक टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर होती थी, दैट पीपल हम्म यूज्ड टू जॉइन। अभी भी है वो स्टार्टर, वो एक्चुअली नए मॉड्यूल में आ रही है, दैट हम्म यू मेंशन। मैं आपको बता दूं, एक नया मॉड्यूल है हम्म अबाउट हाउ टू सेट अप फेसबुक ग्रुप्स की। हम्म, फॉर एग्जांपल, अगर आप रियल एस्टेट में हो हाँ एंड देयर आर लॉट ऑफ फेसबुक ग्रुप्स फॉर रियल एस्टेट इन कैलगरी, रियल एस्टेट इन मॉन्ट्रियल, ऐसे करके ग्रुप्स हम्म होते हैं। हम्म एंड यू जॉइन दैट ग्रुप, आपके तब फेसबुक प्रोफाइल बिल्कुल ब्लैंक होनी चाहिए। यू हम्म जॉइन दैट ग्रुप एंड आप जाके एंगेज करने लग जाते हो रियल एस्टेट पीपल से। नाउ यू गॉट अ ग्रुप ऑफ 5,000 रियल एस्टेट एजेंट्स इन वन प्लेस। हम्म अब आप उनसे एंगेज कर सकते हो, आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। मोस्ट ऑफ दीज हम्म पीपल जॉइन फ्रेंड रिक्वेस्ट बिकॉज उनको लगता है मे बी पोटेंशियल क्लाइंट हो, मे बी क्या हो, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम्म एंड देन यू स्टार्ट टू मेक योर फेसबुक प्रोफाइल अ फनल। अब वो हम्म फेसबुक प्रोफाइल एक फनल बन जाता है, वेर यू आर पोस्टिंग आई गॉट दिस न्यू रियल एस्टेट एजेंट 15 प्लस लीड्स, या हम्म मैंने एक फ्री ई बुक निकाले ऑन हाउ टू हैव रियल एस्टेट एजेंट्स विद देयर XYZ with their marketing strategy या कुछ भी, यू कैन डीएम मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। फिर ये लोग देखते हैं आपका पोस्ट और आप कहते हैं कि अरे मैं तो रियल एस्टेट एजेंट, लेट मी आस्क दिस पर्सन फॉर दिस सेम थिंग। एंड दैट इज हाउ यू कैन जनरेट इनबाउंड लीड्स वाया फेसबुक। दैट इज हाउ फेसबुक ग्रुप सेलिंग वर्क्स। जहां तक मैंने चूज किया फेसबुक ग्रुप, आई हैव ऑलवेज बीन इन फेसबुक ग्रुप्स फॉर एवरी प्रोग्राम आई हैव एवर बीन इन। तो आई ऑलवेज फेल फेसबुक ग्रुप हैज दैट थिंग कि आप पोस्ट जाके देख सकते हो। बिकॉज डिस्कॉर्ड में क्या है, थ्रेड में आप रिप्लाई करोगे नहीं तो आपका चैट भर जाएगी पूरी। आप व्हाट्सएप पे बैक ट्रैक नहीं कर सकते चीजों को जाके, व्हाट्सएप पे जस्ट कम्युनिकेशन, आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। फेसबुक पे क्या है कि अगर कोई नया बंदा आया कोर्स पे और उसको क्वेश्चन है अबाउट वार्म अप कितने दिन तक करना है इंस्टेंटली को, तो वो फेसबुक पे आके सर्च करेगा जब वार्म अप, तो उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा जो किसी और ने क्वेश्चन पूछा होगा और मैंने या किसी और स्टूडेंट ने आंसर कर रखा होगा। So it's you're basically creating a directory of questions, of achievements, of wins. Ki people can come back and look at their wins, come back and look at the achievements and all of this, and it just becomes a community feel. Over, I always felt over Discord because half people don't understand Discord because Discord is more of like a, you know, gaming thing. Like India में कभी Discord उस way में famous नहीं हुआ। हाँ WhatsApp I feel थोड़ा ज़्यादा intrusive होता है because I never give WhatsApp numbers to even my clients. I always keep them on Slack because I always like to keep थोड़ा business life and personal life थोड़ी different in the sense of it. एक दो clients के पास होता है because they're so पुराने clients उनको मिल जाता है, but I don't ever try to give my WhatsApp numbers because I feel मेरा WhatsApp is my personal space with my friends or family. So that is hindered. So I felt Facebook is the perfect place for business as well as for creating that directory of people. Okay, got it. Yeah, Shivam bhai, this was all from my side. Anything you would like to add up or something? नहीं बस I would just want to say कि you know if you're trying to do an online business, don't just Hmm. stick, don't think so, मैं ये नहीं कह रहा social media marketing is the best. Hmm. There's Amazon FBA, there's drop shipping. Take a Hmm. look at the business model and then decide करो आपको करना क्या है. But I would 100% urge a college student or somebody who's out of college or even in a job कि एक बारी एक मॉडल को मौका देके देखो. Even if you don't want to make it your main gig, you can easily make it a side gig and just earn that extra 15-20,000 rupees a month. Hmm. एंड जो लोग कर रहे हैं, लाइक यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट राइट नाउ कि पहले 2 दिन में 2 क्लाइंट मिल गए, उसके बाद 2 महीने कुछ नहीं मिला और फिर तीसरे हाँ महीने एक और क्लाइंट मिल गया। हाँ दैट इट इज अ गेम ऑफ अप एंड डाउन। या एंड 3 महीने में अनफॉर्चुनेटली कोई बिजनेस सेटअप कर ही नहीं सकता। मुझे चार हाँ साल हो गए ना, अभी भी मुझे लगता है कि ये चलेगा क्या, मतलब अभी तक मुझे हम्म वो श्योरिटी नहीं है बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल गेम दैट यू आर प्लेइंग। तो हम्म एक आपको एक श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं अपना पूरा दूंगा एंड हम्म लर्न फ्रॉम गुड सोर्सेज। चाहे आपको स्पेंड नहीं करना एजुकेशन में, इवन इफ यू डोंट वांट टू spend on a course or anything, YouTube has हम्म enough information. Just हम्म make sure you're searching for the right thing and हम्म don't get lost into the information structure because हम्म everybody is trying to sell you something or the other. Main हम्म information उठाओ वीडियो के और आगे बढ़ जाओ, otherwise you'll just keep swirling in the education loop and आप उस चीज को कभी outreach नहीं कर पाओगे, आप उस चीज को कभी implement नहीं कर पाओगे। Important.